بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے میرے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ رات کو یورن کر کے سونے سے گردے زندگی پر خراب نہیں ہوں گے۔ سر میں کڑوے تیل کی مالش کرنے سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ صبح نہار منہ نیم کے پتوں کو دیکھنے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، پیٹ نہ خارج ہونے کی جو نشانی ہوتی ہے، یہ دماغ کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے انسان کو ورزش کی ضرورت نہیں رہتی، وہ تندرست رہتا ہے۔ خربوزہ روزانہ کھانے سے کبھی گردے میں پتھری نہیں پیدا ہوگی، یہ گردوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے۔ خربوزہ لازمی کھایا کرے۔ کھانے کے بعد ایک دانہ کھجور کا کھا لینے سے ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ کیلا کھانے سے شہوت میں اضافہ ہوگا۔ گوبھی کا چھلکا کھانے والے جو ہوں گے ان کا چہرہ تر و تازہ رہے گا، چہرہ خوش رہے گا، اور رات کے وقت آدھی روٹی کا استعمال کرنے والوں میں 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہے گی۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے پیٹ میں گندگی جمع نہیں ہوتی، پیٹ صاف رہتا ہے۔ دوپہر کے وقت گاجر کھانے سے بدن میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ روزانہ کھاؤ، ایک ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا۔ ہونٹوں کو نرم ملائم کرنے کے لیے ہونٹوں پر عرق گلاب سوتے وقت لگاؤ۔ اگر خشک کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر کھا لیں، ان سے آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ سیب کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کم ہوگا۔ فالج کی بیماری میں کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ روٹین سے پیاز کھانے والے انسان کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ جلدی دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کالی مرچ چبانے سے پٹھوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کیجیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ عورت بال لمبے کرنے کے لیے گاجر اور پالک کا جوس بنا کر پیے۔ دنیا میں انسان دیگر جانوروں کی بنسبت مچھر کی وجہ سے زیادہ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مردانہ طاقت کو کمزور کرنے والی میٹھی زیادہ چیزیں کھانے کا استعمال کرنا، تمام تلی ہوئی چیزیں کھانا، یہ مردانہ طاقت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کنگھے پر لیموں کا پانی لگا کر بالوں میں پھیرنے سے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ موٹاپے کا شکار عورتیں صرف نہار منہ کلونجی کا استعمال کر لیں، چند دنوں کے اندر اندر دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر نمک مکس کر کے اس میں گوشت کو ڈپ کر دیں، گوشت فوراً کھل جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہمیشہ طاقتور رہنا چاہتے ہو تو ناشتہ وقت پر کرو۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ ناریل کھانے سے بندے کی اندر کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگا لیا کرو، ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہیں گے۔ توے پر نمک لگاؤ اور روٹی نہیں پھٹے گی۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ چہرے پر تھوڑا سا انگور کا رس مل لیں اور پھر چہرے کو دھو دیں۔ جو میری بہنیں چہرے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جن کے چہرے پہ داغ دھبے ہیں، چھائیاں ہیں، تو وہ ایلو ویرا میں تھوڑی سی ہلدی کو مکس کر کے چہرے پہ لگا لیں اور پھر دھو لیں۔ یہ عمل تقریباً 1 ہفتے تک کریں، انشاءاللہ ان کے چہرے کے داغ دھبے ٹوٹلی ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان کی جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے، جوان دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہے تو وہ دال چینی حسب ضرورت، ادرک کا ٹکڑا حسب ضرورت، لیموں کا رس، 1 سپون شہد، 1 سپون
को पानी में डालकर चूल्हे पे चढ़ा दें। इसमें दालचीनी और अदरक डालकर इतना पकाए कि 1 कप रह जाए। फिर चूल्हा बंद करके इसको छान ले। इसमें नींबू का रस और शहद अच्छी तरह हल करें। ये कहवा रोज़ाना पी ले। साथ डाइट का ख्याल रखें, आपका वज़न कम होने लगेगा। अगर आपको पेट का दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करो, इससे अफाका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रात को वज़ू करके सोया करो, बरकत होगी। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर जवान रहता है। ज़्यादा खाने वाला सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला कम अक्ल होता है। रोज़ाना अपने हाथों पाँव की हथेलियों पे तलियों की तेल की मालिश करके सोया करें। आप काफ़ी उम्र बीमार से बचे रहेंगे। अमरूद खाने से ज़हनी तनाव कम होता है। निहार मुँह रोज़ाना शहद चाट लेने से कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होगी। इस सब को रोज़ाना इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत और दर्द कम हो जाएगी और मैदे की तेज़ाबियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जानवर की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाओ, आपकी याददाश्त तेज़ होगी और हाफ़ज़ा मजबूत होगा। अगर अपनी सेहत को हमेशा के लिए अच्छा रखना चाहते हो तो चावलों के साथ दूध ना पियो। निहार मुँह भुने हुए चने खाने से कभी हाफ़ज़ा कमज़ोर नहीं होगा। ज़िंदगी भर जवान रहने के लिए गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाएं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, भैंस के गोश्त का सूप पीने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। बंद जूते गर्मी के मौसम में इस्तेमाल ना कीजिए, इससे नज़र पे काफ़ी असर पड़ता है और नज़र कमज़ोर हो जाती है। नीम गर्म पानी में शहद शामिल करके पी लो, गुर्दों की बीमारी नहीं लगेगी। हाथ धोए बगैर जो खाना खाते हैं, इनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, छोटे बच्चों में रोज़ाना केला खिलाया करो, इसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। बनाना में माँ के दूध से ज़्यादा ताकत होती है, इसको लाजमी खिलाया करें। सुबह नाश्ते के बाद 2 अंजीर खा लेने से लिकोरिया की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना खाने के साथ खीरा खाएं, ये मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रात को खाली पेट कभी मत सो, इससे उम्र में कमी आती है। काली मिर्च पीसकर इसको सहन के कोनों में डाल देने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। बूढ़े लोग टांगों पर जैतून का तेल लगाएं, बदन चुस्त तवाना ताकतवर हो जाएगा। हमेशा 3 सांस में पानी पिया करो, जहानत में इजाफा होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सौंफ वाला दूध पीने वाले बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। सौंफ वाला दूध पट्ठों और जिस्म और जिल्द की कमज़ोरी को दूर करता है। बदन में पानी की बड़ी वजह चाय है। अदरक शुगर की बीमारी ख़त्म कर देता है। अगर जिस्म की ख़ारिश हो तो सबसे बेहतर ये है कि नीम के पत्ते पानी में उबाल कर इससे नहा लें। थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खान लेने से बदहज़मी गैस दूर हो जाती है। खीरे के छिलके को पेशानी पर रखने से दर्द ख़त्म होगा और नींद पुरसकून आएगी। सख्त गर्मी में गोश्त का इस्तेमाल कम किया करें, वरना बीमारियां घेर लेंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मसाने की कमज़ोरी का मसला हो तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और तली हुई चीज़ों से परहेज़ कीजिए। पुदीने के पत्ते सूंघ लेने से डिप्रेशन की बीमारी में अफाका होता है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है। गर्मियों में टिंडों का सालन लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके खाने से हाई ब्लड प्रेशर जो होगा वो लेवल पे आ जाएगा। जिसको एलर्जी का मसला हो, जामुन के पत्ते चबाए, एलर्जी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। सरसों के फूल की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज़ हो जाती हैं। मैदे की तेज़ाबियत हो तो अचार इस्तेमाल ना करें। चेहरे पर अगर टमाटर का रस लगा ले जाएं तो चेहरा साफ़ हो जाता है, दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं, चेहरे पे रौनक आ जाती है। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर ना करें तो भूलने की बीमारी लग जाती है। सुबह के वक्त हाथ मुंह धोए बगैर नाश्ता करने से ज़हनी कमज़ोरी हो जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर नए पैदा होने वाले बच्चे को अनार का जूस खिलाते हैं तो वो जल्दी बोलना शुरू कर देगा। अगर सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो अदरक वाली चाय बनाकर पी लो, इससे आपको सांस लेने में दुश्वारी जो आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही प्यारी बातें हैं, इस पे अमल कीजिए। बाज़ारी खाने से जिगर कमज़ोर हो जाता है। काले चने का शोरबा 1 कप रोज़ाना शाम 4 बजे 1 महीने तक पियो। शुगर, दमा और जिस्मानी कमज़ोरी हैरत अंगेज़ इंतहाई तेज़ इलाज है। सिर्फ शोरबा ही इसका इलाज है, इसलिए इसमें मौजूद काले चने मरीज़ को ना
दिए जाएं। मरीज़ इस शोरबे के साथ रोटी भी खा सकता है। दिल की बीमारी को दूर करने के लिए जैतून का तेल ख़ास इस्तेमाल करने से मैदे के तमाम अमराज ठीक हो जाते हैं। पेट में दर्द हो और खाना हजम ना हो तो खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लिया करो। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो इनको सोने से कबल सौंफ खिला दिया करो, नज़र इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगी। इमली का अचार खाने से पेशाब खुल कर आता है। केला कैंसर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। हल्के रंग के लिबास पहनने से जिल्द खूबसूरत और नरम हो जाती है। गैर ज़रूरी बालों पर फटकरी की मालिश करने से बाल ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों को बार बार उल्टी आती हो वो इलायची चबा लिया करे, उल्टी का मसला ख़त्म हो जाएगा। रात देर से सोने की आदत बंदे की हुस्न को ख़त्म कर देती है। ज़्यादा देर कंधों को झुका कर बैठने से पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से कैंसर की बीमारी होने का खदशा होता है। सब्ज़ रंग की चीज़ों को गौर से देखने से नज़र तेज़ हो जाती है। पका हुआ आम खाने से रंग निखरता है। बदहज़मी से बचना है तो खाना आस्ता खाओ। इमली आलू बुखारे का शरबत पीने से जिस्म की चर्बी ख़त्म हो जाती है और साथ साथ जिगर और मैदे की गर्मी भी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ चेहरे से कील मुहासे और छाइयाँ भी दूर हो जाती है। अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। निहार मुँह रोज़ाना स्या अंगूर खाने से मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाती है। गीली मिट्टी की खुशबू को सूंघ लेने से सूंघने की ताकत बढ़ जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रात के वक्त अनार खाने से दिमाग को बेतहाशा ताकत मिलती है। सफ़ेद रंग का कपड़ा सर पे रख लेने से सर में दर्द नहीं होता। मुसलसल एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठे रहने से बंदा कमज़ोर हो जाता है। दोपहर के वक्त रोज़ाना खाने के बाद आम खाने से याददाश्त अच्छी होती है। लेट कर पढ़ने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जिस घर में 3 बेटियां हों इस घर में कभी मुफलिसी नहीं आती। ख्वाब में समंदर का नज़र आना जल्दी शादी होने की निशानी है। जिस घर में ज़्यादा बोलने वाली औरत हो इस घर में खुशियाँ बहुत कम और गम ज़्यादा आते हैं। चाय में कलौंजी भिगो कर पी लो, इससे जहन तेज़ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, इंसुलिन शुगर से पीछा छुड़वाने के लिए गिरी बादाम आधा किलो और स्याह जो 50 ग्राम लें। दोनों अज़ा को कूट कर सफ़ूफ बना लें। रोज़ाना सुबह 1 चम्मच का पानी के हमरा खा लें। शुगर इस तरह दूर हो जाएगी जैसे थी ही नहीं। आंखों की नज़र भी बिजली जैसी तेज़ हो जाएगी। भूलने की बीमारी भी दूर हो जाएगी। गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पथरी टूट कर निकल जाती है। आबे ज़मज़म जिस बीमारी के लिए पिया जाए ये शफा देता है और बदहज़मी जलन दूर करता है। आम हमेशा ठंडा करके खाओ और बाद में कच्ची लस्सी ज़रूर इस्तेमाल करो। आम ठंडे करने के बगैर खाने से जिस्म पर फोड़े और आँखों की बीमारी पैदा करता है। निहार मुँह आम खाना गर्मी पैदा करता है। खट्टा आम आदमी की सेहत के लिए नुकसानदेह है। ज़्यादा गुस्सा करने से जिगर कमज़ोर हो जाता है। एक तहकीक के मुताबिक नस्वार का ज़्यादा इस्तेमाल मुंह के कैंसर का सबब बन सकता है। खड़े होकर पानी ना पियो, पेट और दिल के अमराज में मुब्तला हो जाओगे। जिन अफराद को कुव्वत बका की कमी हो ऐसे लोग धनिया इस्तेमाल ना। होंठों का सूज जाना, बार बार सूज जाना जल्दी गुर्दे ख़राब होने की इलामत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सुबह उठते ही सब्ज़े को देखने से नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और निहार मुँह सौंफ को खाने से नज़र में इजाफ़ा होता है और पेट की दर्द भी ख़त्म हो जाती है। गर्म दूध पीने से हिचकी दूर हो जाती है। दूध में मीठा डालने से बलगम पैदा होती है, गैस पैदा होती है। क्या आप जानते हैं कि जंगली जानवर ख़ास करके बंदर जब बीमार होता है तो इसके दूसरे साथी इससे फासला रखते हैं ताकि वो बीमारी इनको न लग जाए। आम घी के अंदर नमक डालकर जिस्म की मालिश करने से खुश्की दूर हो जाती है। खाना हमेशा पूरी तरह पेट खाली होने के बाद खाना चाहिए। अगर आपका वज़न अचानक कम होने लगे और 4 से 5 किलो कम हो जाए तो ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। गुर्दे ख़राब होने की चंद निशानियाँ ये है: हाथ, पैर, बाजू और घुटनों पर सोज का ज़ाहिर हो जाना। गुर्दे खून साफ करते हैं मगर जब ये ठीक से काम ना कर रहे हों तो खून में फाजिल मादों की मिक़दार बढ़ जाती है जिससे जिल्द पर खुशगवारी और ख़ारिश शुरू हो जाती है और जिल्द फट जाती है। ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए।
अगर गुर्दे ठीक से काम ना कर रहे हों तो बदन में ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाती है, जिससे बेवक्त नींद और सुस्ती तारी होना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चाय को हमेशा ठंडा करके पीना चाहिए। ज़्यादा गर्म चाय पीने से कैंसर का मसला हो सकता है। दिल की बीमारी से बचना चाहते हो तो रोज़ाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खाया जाए, इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। हरे धनिया का अर्क छालों पे लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। गले के कोई भी प्रॉब्लम हो तो अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से गला ठीक हो जाएगा। पेट में हर वक्त गैस रहती हो तो मेथी के बीज खाओ, इससे गैस का मसला हल हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथ से निकल रही है और हालात आपके मुताबिक नहीं है, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचें जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, इसी उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। अगर तुम्हें एक दूसरे के ऐब पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं, इस पर शुक्र अदा करो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, प्याज काटते वक्त सर पर मोटा कपड़ा रखने से आंखों से आंसू नहीं आते। हमेशा खाने से कबल फल खाने चाहिए। अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो महज एक घूंट पानी पी लेना चाहिए। इसके बाद रोटी का एक नवाला ले लो। खाने के बाद पानी पीने से तेजाबियत, गैस और बदहजमी का बायस बनता है। बर्फ़ के पानी में कपड़ा भिगोकर आंखों पर रखने से बीनाई तेज़ हो जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, गर्दन काली हो जाए तो नींबू का रस मीठा सोडे में मिलाकर गर्दन पर मलने से गर्दन आपकी सफ़ेद हो जाएगी। जमाई आपके दिमाग को ठंडा करती है। मसूर की दाल खाने से पेट की बीमारी दूर करने में ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आपके हाथ पाँव सो रहे हैं, सुन हो रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि सुबह निहार मुँह लहसुन का एक जो निहार खा लिया करें और इसके साथ साथ तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें और 7 जौ के दलिए का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने रिज़्क में इजाफ़ा चाहते हैं, आपके रिज़्क में कमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ज़ुबान पे इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र किया करें। इसी के साथ साथ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में सदका लाज़मी किया करें, बेशक एक खजूर ही का क्यों ना हो। ये आपको मुसीबतों बलाओं से बचाएगा और आपके रिज़्क में इजाफ़ा करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। जैसा आप चाहे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।